Hello everyone, welcome to Genius IAS Academy. I'm your teacher Mahima for your polity subject. And as you know, for past classes we have covered about constitution, its formation, its amendment, basic structure of constitution, and a very important topic of your polity, that is your fundamental right. फंडामेंटल राइट के बारे में हम आर्टिकल 12 से लेके अभी तक जो हमने प्रोसेस किया है वो आर्टिकल 18 राइट टू इक्वेलिटी, जो फर्स्ट फंडामेंटल राइट है आपका, राइट टू इक्वेलिटी को हम कवर अप कर चुके हैं। अभी मैं थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में, अगर आप नए हैं तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में इसके बारे में बता देती हूँ और आपसे बोलूँगी कि अगर आपने प्रीवियस क्लासेस अभी तक अटेम्प्ट नहीं की हैं तो प्लीज़ प्रीवियस क्लासेस को जाके अटेम्प्ट कीजिए, बिकॉज अदरवाइज़ आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। बहुत सारी चीज़ें अभी तक बताई जा चुकी हैं और रेगुलर उनको कनेक्ट करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, तो प्लीज़ आप उनको प्रीवियस क्लासेस को जाके रेफ़र कर लीजिएगा। आज फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम के बारे में हम पढ़ेंगे और राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के बारे में पढ़ेंगे। मैं आपको थोड़ा स्लोली इसलिए इन राइट्स के बारे में पढ़ा रही हूँ बिकॉज थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाते हैं। मैं नहीं चाहती कि आप कंफ्यूज्ड हों, थोड़ा जो जितना भी आपको पढ़ाया जाए वो आपके दिमाग में रहे। ओके, सो शैल वी विल स्टार्ट। जैसे फंडामेंटल राइट, ये अगर आपको प्रिंस पर्सपेक्टिव से किसी भी चीज़ के बारे में जानना है तो आपको, स्पेशली इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर स्टेट सर्विसेज में दीज राइट्स दे बेसिकली आर पार्ट 3, article 12 to 35 and MPPSC. If I'm talking only talking from the perspective of MPPSC, then MPPSC most of the time they ask question on the basis of article, like right against exploitation. In which article they will give you the articles. It is article 12, is it article 23, it is article 24, it is article 22, like that they will give. So please, like is the easiest thing, actually I would say, if civil services they are asking, you have to just do the memorization better. That only you can do if you regularly do the revision of your subject. So every class, continuously I am telling you 2-3 things that please go through the syllabus first, then every time keep that syllabus with you, so whenever you are reading the topic you are able to connect, okay, this things comes in this portion of my syllabus, right? And one more thing you have to keep in your mind, that previous year papers, and as your state PSC paper is very near, so you have to keep in your mind, like you should up to whatever from whatever year, say up to this 2024 prelims, all the papers you have to revise, and according to try to prepare your do your preparation according to those papers. Okay, so these are the things you have to keep in mind because your state PSC prelims is very near. So इंस्पिरेशन कहाँ से लिया गया था फंडामेंटल राइट का? यूएसए से लिया गया था। एंड द रेस्ट आई थिंक, व्हाट इज पॉलिटिकल डेमोक्रेसी क्या होता है, अथॉरिटेटिव रूल को बेसिकली आपके आने नहीं देता है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन अथॉरिटेरियन डेस्पोटिक रूल इन द कंट्री, राइट। और फंडामेंटल राइट आपको बताते हैं, इनका एम मेन यही होता है कि गवर्नमेंट बाय लॉ नॉट बाय द मैन। दीज आर द योर फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट की एब्सोल्यूट नहीं होते हैं। अब हम आज इस एब्सोल्यूट टर्म का बहुत अच्छे से आपको यूज़ पता चलेगा कि वाई दे आर नॉट, फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट इन नेचर, कि ऐसा है तो ऐसा ही एग्जिस्ट करता है और आप जाके हर समय जाके कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में। एज यू रिमेंबर कि फंडामेंटल राइट की एनफोर्सिबिलिटी के लिए अंडर आर्टिकल 13(2) यू हैव टू गो टू द, यू कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज द guarantor of your fundamental right, and high court under 226. So these things you have to keep in your mind. Rest we will move forward and one by one. State definition, what is the meaning of state? Please keep in your mind, because article, because from the perspective of your polity, especially in part 3, this state word is most of the time used, so you should know what is the meaning of state, so you won't confused against that word.
like right to equality, it is until this equality before law and equal protection of law के बारे में बताता है अंडर आर्टिकल 14. इक्वालिटी प्रिलिम्स पर्सपेक्टिव से आपका ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन एंड अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, एंड रूल ऑफ लॉ क्या होता है, ओ एंड दीज आर द थिंग्स. आर्टिकल 15 कि आप किसी को रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पर किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो कि ये इंसान ये शॉप यूज बिकॉज ही बिलोंग टू दिस रिलीजन सो ही कांट यूज दिस शॉप, ही कांट यूज दिस रेस्टोरेंट बेसिकली. एंड द पब्लिक properties, those are public properties are those properties which are given you to by the some government. Okay, those are your public properties. So these are the thing. And this reservation concept, I have told you some cases also very important. Cases, Indra Sanve case, that Mandal case, which we called Mandal case also 1992, about from where that 50% limitation has come. Okay, so these are the thing. This commission, you have to remember this commission, like Kalelkar commission, which was the first commission for backward classes, 1953, its formation date of 1953. Mandal commission under BP Mandal 1979, in the year of 1979 it has formed, and 20% 7% reservation की बात इस कमीशन के द्वारा की गई थी. Abolition of title, you have to remember. Abolition of untouchability, you have to remember, and you have to remember this word, that untouchability nowhere has defined in the constitution. And second thing you have to remember, that in abolition of titles, national awards doesn't count. national awards नहीं आते हैं abolition of titles के अंदर. Now today we will go with these articles from article 19 to 22. We will discuss about one by one all the articles briefly. So आर्टिकल 19 के अंदर 6 राइट्स आते हैं बेसिकली आपके. ओके, वन इज राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. अब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, क्या आप सिर्फ बोल के ही आपका फ्रीडम ऑफ की आपका जो राइट है बोलने का, कि आप बोल सकते हैं इस टॉपिक के बारे में बोल सकते हैं, तो क्या वो सिर्फ आप बोल के बोल सकते हैं? फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन में अलग अलग टर्म्स भी आते हैं कि आप दूसरे के व्यू पॉइंट को भी डिस्कस कर सकते हैं. यू कोड राइटिंग भी आपका एक फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. इवन अ साइलेंस इज ऑल्सो द फॉर्म ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. ओके, right to assemble peacefully. These are the 6 rights basically comes under article 19, and we are going to discuss all of them one by one in detail. I want to mention one thing, that earlier there was a 7 right under article 19. One was the right to property, which was deleted by 44th Amendment Act 1978. And in your previous year question of MPPSC has asked that question also, like in which year or by which amendment act right to property has deleted from the fundamental right. Now it is a part of you. Right to property is your right, but now it's not a fundamental right, it's your legal right. Okay, 6 rights are protected against only state action. जो ये 6 राइट आपके लिखे हुए हैं, राइट टू फ्रीडम, असेंबल, form association, move freely throughout the territory of India, reside and settle in any part of territory of India, practice any profession or to carry on any occupation, trade, business. ये जो राइट्स हैं आपके सिर्फ स्टेट के एक्शन के खिलाफ हैं. मैंने आपको स्टेट वर्ड का मतलब समझाया है कि स्टेट वर्ड का अंडर आर्टिकल 12 इन पार्ट 3 क्या मीनिंग होता है. ओके, ये वही स्टेट के एक्शन है, नॉट प्राइवेट. आप प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ नहीं हैं, आपके पास ये राइट्स नहीं है. यहाँ मैंने आपको बोला था कि सम राइट्स आर अवेलेबल
only against the state, like all the rights are available against the state, but some are available against the private individuals, like untouchability is available against the private individuals also. Okay, so this is the this thing you have to keep in your mind. And this is against the state matlab fundamental rights are the, positive and negative also, but positive in the sense that they are giving you privileges, then it is a positive, and negative in the sense because the fundamental rights are going to use against the state, so it is in that sense it is negative. Right are available only to the citizen and to shareholders of a company, but not ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है, ओनली टू सिटीजन्स अवेलेबल हैं, और जो आपके शेयर होल्डर होंगे कंपनी के उनको अवेलेबल है। लेकिन किसी फॉरेनर्स या लीगल पर्सन होने का मतलब क्या होता है कि किसी लॉ के द्वारा वो ऑर्गेनाइजेशन आया हुआ, जैसे आपकी कंपनीज हो गई, कॉर्पोरेशंस हो गए, इनके लिए अवेलेबल नहीं है। तो ये दो चीज़ें आपको माइंड में रखनी है कि आपका जो आर्टिकल 19 है राइट टू फ्रीडम के अंदर, वो उसमें जो ये राइट्स हैं वो आपके सिर्फ स्टेट के एक्शन के खिलाफ अवेलेबल हैं, आपको ये प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ अवेलेबल नहीं है। और ये राइट्स जो अवेलेबल हैं, जो इन राइट का यूज़ कर सकता है, वो आपके सिटीजन्स और शेयर होल्डर ऑफ कंपनी होंगे। ओके, शेयर होल्डर्स ऑफ कंपनी का मतलब है कोई एक कंपनी है, उसमें शेयर होल्डर्स हैं कि उनका इतना परसेंट हिस्सा है, उन्होंने उस कंपनी के कुछ शेयर होते हैं, उस शेयर में उन्होंने इतने परसेंट शेयर कर दिए, दो ज़्यादा शेयर होल्डर्स ऑफ कंपनी। बट कंपनी इटसेल्फ एंड कॉर्पोरेशन आर नॉट, उनको ये राइट्स अवेलेबल नहीं है, और फॉरेनर्स को ये राइट अवेलेबल नहीं है। ये बात आपको आपके माइंड में रखनी है। स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, यहीं पे आपका आ जाता है कि फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट। ओके, स्टेट किस फॉर्म में आपका रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाता है, ये मैं आपको हर एक राइट के अपने स्टेट ने डिसाइड कर रखे हैं कि इन बेसिस पे आपके रिस्ट्रिक्शन अप्लाई हो सकते हैं, आप फंडामेंटल राइट को वहाँ यूज़ नहीं कर सकते। ओके, यू कांट गो टू कोर्ट फॉर द एनफोर्सिबिलिटी ऑफ दोज राइट, देयर आर सम रिस्ट्रिक्शंस विच वी विल सी वन बाय वन। अब पहला अंडर आर्टिकल 19 के अंदर पहला हम पार्ट पढ़ते हैं, दैट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। जैसा कि मैंने आपको बोला, अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करना, अपनी ओपिनियन को बताना, अपने बिलीव को बताना, ये आपका और इसको कई तरीके से आप बता सकते हो। ओके, सो दैट ओनली आई हैव रिटन हियर दैट राइट टू एक्सप्रेस हिज व्यूज़, ओपिनियन, बिलीव, conviction freely by word of mouth, writing, printing, picturing on any manner. Okay, picturing, like if you're keeping some picture also, that is also one of the form of right to freedom of speech and expression, बशर्ते वो कुछ जो इनके restrictions हैं उनको violate ना कर रहा हो। Okay, तो कुछ कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट्स के जजमेंट्स आए, उनसे भी वन बाय वन ड्रॉ हुआ कि कौन कौन से आपके पार्ट होंगे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के। ओके, सो वी विल गो राइट टू प्रोपोगेट वंस व्यू, मतलब आप अपने व्यू भी बता सकते हैं और दूसरे का व्यू भी अगर आप एक्सप्रेस कर रहे हैं तो वो भी आपके राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर में आएगा। फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ प्रेस इन द सेंस कि अपना आपको आर्टिकल, प्रेस जो होते हैं आपके आर्टिकल्स जो लेके आते हैं, न्यूज़पेपर्स लेके आते हैं, उसमें कुछ उनके उस पर वहाँ कर्व नहीं किया जा सकता है उनके राइट्स को, अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस करने के लिए। कंडीशंस आ जाती हैं, देयर आर द कंडीशंस, अगर वो कुछ रिस्ट्रिक्शंस जो हैं उनको वायलेट कर रहे हैं तो डेफिनेटली वहाँ पे रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं वहाँ पे। लेकिन इन जनरल अगर कोई ट्रू रिपोर्ट अगर किसी चीज़ की दे रहा है तो वहाँ पे आप उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर सकते हैं। दिस मीन्स यू आर वायलेटिंग द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। वी ऑफनली हर्ड ऑल्सो दैट वर्ड दैट
कि गवर्नमेंट फ्रीडम कर्व कर रही है प्रेस का या जर्नलिस्ट का, तो इस तरीके से आप यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं जब आप ऐसा कोई शब्द सुने। या कई केसेस भी रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट में गए हैं कि किसी कार्टून ने कार्टूनिस्ट है कोई, उन्होंने कोई कार्टून बनाया है। आप देखते होंगे कि पेपर जब आप पढ़ते होंगे कि पेपर में एक कार्टून फॉर्म में किसी पॉलिटिकल ओपिनियन को डिफाइन किया जाता है। ओके, तो कई बार आपने इनके केसेस सुने होंगे कि ये केसेस सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया वहाँ पे कि इट्स गवर्नमेंट की इस पोजीशन को ये डेंजर उसमें डाल रहा है। तो वहाँ इस तरीके से जब इस तरीके की न्यूज़ आपको सुनने में मिले, इस तरीके अगर केसेस चल रहे हैं, तो प्लीज़ इनको हमेशा कनेक्ट कीजिएगा कि ओके मैंने अभी ये वाला राइट पढ़ा तो था, मैंने अंडर आर्टिकल 19 पढ़ा था। इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हैं चीज़ों को, आपकी अंडरस्टैंडिंग उससे बेहतर होती है। यहाँ तो क्या आप एक थियोरटिकल समझ लेते हैं बस, लेकिन जब आप एक एग्जाम्पल के थ्रू उसको माइंड में रखते हैं तो वो लॉन्ग टर्म आपके दिमाग में सस्टेन रहता है। ओके, सो अनदर थिंग इज फ्रीडम ऑफ कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट। आप कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट कि आपको अपना आपका कोई बिजनेस है उसका एडवर्टाइजमेंट करने का है, आपको राइट होता है, राइट। कितने सारे एडवर्टाइजमेंट कमर्शियली जो एडवर्टाइजमेंट वो लगे हुए रहते हैं, उनको कोई कहता नहीं कि सर आपने ये क्यों लगा, अनलेस एंड अनटिल इट्स नॉट हार्मिंग द पोजीशन लाइक पब्लिक ऑर्डर, लाइक सोसाइटी का कोई एक डेकोरम वो हार्म नहीं कर रहा है, टिल द टाइम इट इज़ नॉट हार्मफुल, यू हैव ऑल द राइट ऑफ एक्सप्रेसिंग योर व्यू। राइट अगेंस्ट टेपिंग ऑफ टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशन, किसी का टेलीफोन नहीं अनलेस एंड अनटिल इट्स द रिक्वायरमेंट ऑफ योर नेशनल सिक्योरिटी और योर इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ योर स्टेट, यू कांट डू द टेपिंग ऑफ टेलीफोन, ये आपके राइट को वायलेट करता है। राइट टू टेलीकास्ट होता है कि टेलीविज़न रेडियोज़ आप इन पे अपनी व्यूज़ को एक्सप्रेस करते हैं, टेलीकास्ट करते हैं। राइट अगेंस्ट बंद, बंद मीन्स स्ट्राइक कॉल्ड बाय, अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी ने या ऑर्गेनाइजेशन ने बुलाया है कि हम ये कर रहे हैं राइट टू स्ट्राइक, तो ये आपके पास होता है इसके अगेंस्ट के खिलाफ करने के लिए, आपके पास अपना व्यू एक्सप्रेस करने के लिए राइट होता है। राइट टू नो अबाउट गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ के बारे में आप जान सकते हो, लाइक राइट टू इन्फॉर्मेशन एक एक्ट होता है जहाँ से आप गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ के बारे में आपको एक जानने का हक होता है। फ्रीडम ऑफ साइलेंस होता है, मैंने बोला ना आप अपना व्यूज़ जो हैं स्पीच एंड एक्सप्रेशन का जो आपका राइट है एज अ साइलेंट फॉर्म में भी आप रख सकते हैं। राइट अगेंस्ट इम्पोजिशन ऑफ प्री सेंसरशिप ऑन न्यूज़पेपर, कि न्यूज़पेपर को पे कुछ एक्सप्रेस करने के व्यू को लेकर उन पर कोई प्रतिबंध लगा दिए गए। राइट टू डिमॉन्स्ट्रेशन बट नॉट राइट टू स्ट्राइक, आप डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हो, आप जाके पीसफुल बैठ के कोई आपको किसी टॉपिक पर किसी या गवर्नमेंट के किसी एक्शन से आपको परेशानी, तो पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन आप कर सकते हो, उसके बारे में हम आगे के आर्टिकल में ही पढ़ेंगे। और बट आपको राइट टू स्ट्राइक नहीं होता है, दैट इज़ नॉट योर फंडामेंटल राइट, राइट टू स्ट्राइक। उसका डिफरेंस क्या होता है हम जानेंगे अगले उसमें। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन क्या होते हैं स्टेट्स, जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन मैं यही बता रही थी कि यहीं पे आपके जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो आपके होते हैं, एब्सोल्यूट नहीं होते, क्योंकि उन पर कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लग जाते हैं। जैसे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन बाय स्टेट ऑन द ग्राउंड ऑफ सॉवरेनिटी, इसका मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ कि आप किसी और कंट्री के अधीन नहीं है। इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ओके, आपकी सिक्योरिटी ऑफ स्टेट हो गया कि स्टेट की सिक्योरिटी को तो कोई खतरा नहीं है, आपके फॉरेन स्टेट्स के साथ जो आपके रिलेशंस हैं उनको तो नहीं कहीं हार्म कर रहा है। और पब्लिक ऑर्डर लाइक सोसाइटी के कुछ अपने कंडक्ट्स होते हैं वो मेंटेन हैं या नहीं है, ओके। डिसेंसी एंड मोरालिटी, कुछ मोरल एस्पेक्ट्स होते हैं आपकी सोसाइटी में, वो तो कहीं हार्म नहीं हो रहे हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गया, कोर्ट का कंटेम्प्ट तो नहीं कर रहे हैं, उसकी जो केसेस हैं उनके अगेंस्ट में गलत रिपोर्ट तो नहीं कोई अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, एक सुप्रीम कोर्ट उसमें आपको बुला भी सकता है कि आपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है, अगर आप सुप्रीम कोर्ट की कोई कार्यवाही है उसकी अगर आप ट्रू रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं
तो वहाँ पे भी आपके यहाँ पे व्यूज़ जो एक्सप्रेस करते हैं आप किसी सपोज़ किसी आर्टिकल के थ्रू कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप पे कंटेम्प्ट कोर्ट का चार्ज लगाया जा सकता है। इस तरीके से आपके राइट्स रिस्ट्रिक्टेड भी रहते हैं। So if you have as a citizen of India, if you have availability of rights, then use it wisely. Okay. डिफेमेशन मतलब आप किसी की मानहानि तो नहीं कर रहे हैं, अफेंस को तो नहीं, ऐसा कोई व्यूज़ जो आपके एक्सप्रेस हो रहे हैं वो कोई अफेंस तो नहीं हो जाएगा उसकी वजह से। इस तरीके से राइट्स आपके रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। हाँ, आपको ये वर्ड्स बहुत अच्छे से याद रखने हैं कि किन चीज़ों के खिलाफ ये अभी तक मैंने MPPSC में तो नहीं इस चीज़ ऐसे इस क्वेश्चंस को ऑब्जर्व किया है, बट UPSC आस्क्ड दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, लाइक दे विल गिव यू एन स्टेटमेंट कि क्या आपके फंडामेंटल राइट्स इन रीजंस से रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। वन ऑफ द reasons they will give directly or indirectly, then you have to aware about with these restrictions. Okay, this is the important thing when you are studying about the fundamental rights. The second right is your freedom of assembly. Within Article 19, we are reading about these rights. Okay, keep in your mind. Under Article, you have the 6th right. Under Article 19, one you have studied right to freedom of speech and expression. First, second is freedom of assembly. Now we will go through this article. Every citizen has right to assemble. That only I have told you. यहाँ लिखा था ना right to demonstration होता है आपको, बट ना आप peacefully कर सकते हैं कि आप असेंबल हो जाएं पीसफुली और विदाउट आर्म्स के आपके पास कोई हथियार नहीं है, बिना हथियार लिए आप पीसफुली आप जाके अपना प्रतिरोध जो आपका गवर्नमेंट के प्रति है, जो आपके गवर्नमेंट के प्रति नाराज़गी आप उसको दिखा रहे हैं, या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन के प्रति आपकी कोई नाराज़गी, आप पीसफुली सिट डाउन होके उस चीज़ को दिखा रहे हैं विदाउट कोई आर्म्स को कैरी किए, तो वो आपका राइट है, आप ऐसा कर सकते हैं। It right to hold public meeting, demonstration and take out procession. Demonstration, that word only I have told you earlier, right? इसमें सबसे चीज़ आपको क्या रिमेंबर रखनी है, दिस राइट ओनली एक्सरसाइज्ड ऑन पब्लिक लैंड। आप किसी प्राइवेट लैंड पे जाके नहीं उस राइट को एक्सरसाइज कर सकते। हाँ, कोई कंपनी होगी तो वहाँ पे कुछ वहाँ पे देन इंडस्ट्रियल लॉज होती हैं, जहाँ पे उन इंडस्ट्रियल लॉज में डिफाइन होता है, वहाँ पे भी राइट्स आपको दिए जाते हैं, बट दोज आर नॉट योर फंडामेंटल राइट्स। And we are talking about the fundamental rights. And what are the fundamental rights? Which is like backed by the constitution, जिनकी गारंटी को इंश्योर करने के लिए कि these are guaranteed by your constitution, आप सुप्रीम कोर्ट के पास डायरेक्टली जा सकते हैं। अदरवाइज अगर आपका कोई यहाँ पे मैं आपको एक और डिफरेंस बता देती हूँ, which is your legal right and which is your fundamental right। और legal right में legal right आपका सिंपल लेजिस्लेचर ने कोई लॉज को ड्रॉ करके लेके आ गए, वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन से डायरेक्ट नहीं आ रहे हैं, आपने कोई बिल पास किया, कोई एक्ट लेके आए, वो आपका लीगल राइट होता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि अंडर आर्टिकल 19 पहले 7 राइट्स थे आपके, वन ऑफ द राइट वॉज राइट टू प्रॉपर्टी, वो अब आपका राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो आर्टिकल 300A में उसको रख दिया गया है। इट इज़ नॉट द राइट ऑफ फंडामेंटल राइट। यहाँ पे आपकी दो चीज़ें सबसे ज़्यादा क्लियर हो जा सकती हैं कि जस्ट अ 1 second ब्रेक आई विल टेक। यहाँ पे आपकी जैसे मैं बता रही थी अभी आपको कि लीगल राइट और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट या फंडामेंटल राइट में क्या डिफरेंस होता है, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया कि अंडर ध्यान से इस बात को सुनिएगा, यहाँ पे आपके पिछली क्लास का एक टॉपिक रिवाइज हो जाएगा, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आगे आने वाली लीगल और फंडामेंटल राइट्स में डिफरेंस पता है। जैसे आपका राइट टू प्रॉपर्टी था, राइट टू प्रॉपर्टी पहले आपका आर्टिकल 19 के अंदर था,
इट वॉज योर फंडामेंटल राइट। देन 44th अमेंडमेंट एक्ट आया 1978, जो लेजिस्लेचर उसको लेके आए और उन्होंने राइट टू प्रॉपर्टी को हटा के डाल दिया गया आपका लीगल राइट में। तो यहाँ पे क्या क्लियर हो गया कि फंडामेंटल राइट जो है वो आपके परमानेंट नहीं है, इनको हटाया भी जा सकता है। और दूसरी चीज़ क्या, कल किस बेसिस पे हटाया जा सकता है, बस आपका बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बदलना चाहिए। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को कोई हार्म नहीं है तो आप फंडामेंटल राइट को चेंज कर सकते हैं। तो यहीं पे आपका ये पॉइंट क्लियर कि फंडामेंटल राइट्स आर नॉट परमानेंट ऑल्सो। लीगल और फंडामेंटल राइट में डिफरेंस क्या होता है, ओके। सो दिस इज़ द वन थिंग। तो हम फ्रीडम ऑफ असेंबली थे, फ्रीडम ऑफ असेंबली में मैंने, अगर आप पीसफुली सिट कर रहे हैं कहीं पे विदाउट आर्म्स लिए, किसी चीज़ के प्रति आप अपना एंगर शो कर रहे हैं इस तरीके से, तो दैट इज़ योर राइट। और ये आपको सिर्फ पब्लिक लैंड पर ही करने का हक है। नो राइट टू स्ट्राइक, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। राइट टू असेंबल होने का मतलब राइट टू स्ट्राइक करना नहीं होता है, ओके। रिस्ट्रिक्शन असेंबल पर किन दो ग्राउंड्स पे लगते हैं कि आपकी टू ग्राउंड ऑफ सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया एंड अनदर इज पब्लिक ऑर्डर। ये दो ग्राउंड्स आपको दिखना है फ्रीडम ऑफ असेंबली में। इन दो ग्राउंड्स पर आपको आपके राइट्स जो हैं वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन रहता है इन दो राइट्स पे आपका, ओके। सो फ्रीडम ऑफ असेंबली में वन मोर थिंग यू हैव टू रिमेंबर, लाइक अगर आप किसी तरीके से आप असेंबल्ड हुए, यहाँ पे दो चीज़ें और आपको थोड़ा जस्ट फॉर अ नॉलेज आई एम टेलिंग यू कि आपके क्रिमिनल कोड ऑफ कंडक्ट एंड इंडियन पीनल कोड के थ्रू जो आपके लॉ के सेक्शन होते हैं जहाँ पे आपकी पुलिस ऑर्डर अप्लाई होते हैं, एक तरीके से हम बोल सकते हैं, उनके थ्रू इस पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस कुछ बेसिस पे लगाया जा सकता है कि आपका कहीं पब्लिक सेफ्टी तो डेंजर में नहीं है, या फिर पब्लिक हेल्थ तो कहीं इससे खतरे में नहीं आएगी। तो यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे आपका ये राइट टू फ्रीडम ऑफ असेंबली जो है, यहाँ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड एंड इंडियन पीनल कोड के थ्रू आपके रिस्ट्रिक्ट कर दिए जाते हैं। एक और इंडियन पीनल कोड के थ्रू वन मोर थिंग होती है, जस्ट फॉर योर नॉलेज आई एम टेलिंग यू, कि सपोज 4-5 लोगों से ज़्यादा अगर लोग किसी की प्रॉपर्टी पर कब्जा करने के लिए या किसी को किसी तरीके का हार्म पहुंचाने के लिए इस तरीके से, तो इस यहाँ पे भी आपको असेंबल होने का हक नहीं है। बेसिकली इफ़ यू डू द इमोरल थिंग which is not moral according to your constitution, according to your society structure, then आपका वहाँ पे reasonable restrictions लग जाते हैं। पब्लिक ऑर्डर का मतलब भी यही होता है, ओके। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन का मतलब होता है एसोसिएट होके कोई एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना, किसी पॉलिटिकल पार्टीज को बना लेना। सो इट्स इंक्लूड द राइट टू फॉर्म एसोसिएशन में यही आता है कि राइट टू फॉर्म अ पॉलिटिकल पार्टीज, कंपनीज, पार्टनरशिप फर्म, सोसाइटीज, क्लब्स, आपको ये सब बनाने का, यूनियन, आप ये यूनियंस बहुत न्यूज़ में, अगर आप न्यूज़पेपर से अवेयर हैं, करंट अफेयर से अच्छे से अवेयर हैं, तो आप ये ट्रेड यूनियंस इन सब के बारे में बनते हैं, आप इनके बारे में जानेंगे, ओके। सो ओके, इट ऑल्सो कवर नॉट टू फॉर्म और ज्वाइन एन एसोसिएशन और यूनियन। इसके अंदर यह आपको ये भी फ्रीडम है कि आपको नहीं बनाना है तो आप मत बनाइए, ज्वाइन नहीं करना है तो मत कीजिए, कंपल्सन नहीं है ये कोई राइट्स आपके ऊपर कंपल्सरी नहीं है, बट ये स्टेट के ऊपर ज़रूर एक कंपल्सन की तरह काम करते हैं कि आप किसी के एक सिटीजन के इन राइट्स को वायलेट नहीं कर सकते हो, ओके। राइट टू ऑब्टेन रिकॉग्निशन भी जो है किसी एसोसिएशन का, अगर आपको रिकॉग्निशन लेना है, सपोज पॉलिटिकल पार्टीज को अपना रिकॉग्निशन लिखना है, तो ये उसका फंडामेंटल राइट नहीं है। ये आपके इलेक्शन कमीशन आपको देता है, जैसे रिकॉग्नाइज कौन करता है पॉलिटिकल पार्टीज़ को। जब हम इलेक्शन कमीशन का टॉपिक पढ़ेंगे, अगर आज टाइम हुआ तो मैंने सोचा है कि मैं आपको 1 by 1
दिस योर कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का भी आइडिया देती जाऊंगी, बिकॉज ये प्रीलिम्स में काफ़ी पूछते हैं, प्रीलिम्स नियर है, तो मैं उस पर्सपेक्टिव को माइंड में रख के ही आपको टॉपिक्स पढ़ाऊंगी जो आपकी प्रीलिम्स और मेंस दोनों में अभी आ सकते हैं। ओके, लेटरली वी कवर द टॉपिक जो आपका मेन पार्ट आएगा। So, right to obtain recognition of association is not your fundamental right. Okay, this again, this reasonable restriction on ground of sovereignty and integrity of India, public order and morality. ये आपको पॉइंट्स याद रखने हैं कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कहाँ कहाँ पे लगते हैं। अभी थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगेगा कि कैसे हम इतने सारे एक साथ याद रखेंगे। मैंने बोला ना, सिविल सर्विसेज का एक मेन कॉन्सेप्ट, 2-3 ही कॉन्सेप्ट हैं अगर आपको अच्छे से इसकी प्रिपरेशन करनी है। लाइक आप रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए और लिखिए उसको। दीज आर द रीड, राइट, रिवाइज, दीज आर द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिफाइंग एनी गवर्नमेंट एग्ज़ाम। जितना आप रीड करेंगे, आप समझिए पहले चीज़ों को। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप रट लीजिए, रटिए मत। रटने का काम लेटर होता है, रटने का काम रिवीजन में होता है। पहले आप किसी भी टॉपिक को बहुत अच्छे से समझिए, समझ लेंगे तो रटना ज़्यादा आसान होता है। रटने का मतलब होता है कि मेमोरी में रखना, समझ में तो आ गया लेकिन उसको रिकॉल करने के लिए आपको किसी भी चीज़ को बार बार रिवाइज करना पड़ता है। तो आपने ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस देख लिए। अब हम अगले उसके राइट के तरफ चलते हैं, दैट इज़ योर फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का मतलब क्या हो गया कि हर सिटीजन को है वो अपनी टेरिटरी, जो इंडियन टेरिटरी है, वहाँ पे फ्रीली मूव कर सकता है। ओके, उस पर कोई उस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है कि हाँ, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन हर जगह हैं आपके, लेकिन इस तरीके से नहीं हो सकता कि आपको सपोज यू आर लिविंग इन MP एंड यू हैव टू गो टू UP और गुजरात और राजस्थान के किसी पार्ट में, तो आप फ्रीली मूव कर सकते हैं। यही आपका फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। ये चीज़ें हमारी रोज़ के जीवन में होती हैं, लेकिन जब हम पॉलिटी में इसको कनेक्ट करके पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है कि दिस इज़ योर फंडामेंटल राइट, जिसकी अगर आपको कोई कर्व करता है बिना किसी रीजंस के, तो आपके पास राइट है कि आप जाके सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, उनसे बोल सकते हैं कि मेरा ये राइट कर्व किया जा रहा है। एवरी सिटीजन हैज़ right to move freely throughout the territory of India. It promote national feeling. एक भावना दे देता है राष्ट्र के प्रति, क्योंकि आप वहाँ के जाके कई चीज़ों को आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये आपको एक जस्ट फॉर जनरल आइडिया कि आपको नेशनल फीलिंग की देता है। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट हैज़ 2 डायमेंशन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। अब जिसको हम, जो ये आपका एक्सटर्नल वाला फैक्टर है, इसको हम इस आर्टिकल में नहीं कवर करेंगे, इसको हम दूसरे आर्टिकल में कवर करेंगे। इंटरनल वाला कि आप इंटरनल कहीं भी जा सकते हैं, जो यही चूज़ में कि आप इस एक राज्य से दूसरे राज्य जो जा सकते हैं, ये यहाँ पे फ्रीडम ऑफ मूवमेंट के 2 डायमेंशन है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन किस ग्राउंड पे है कि जनरल पब्लिक इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, किसी भी इमोरल तरीके से तो नहीं आप पब्लिक के इंटरेस्ट को हार्म कर रहे हैं। तो उस बेसिस पे आपको कोई एक सोसाइटी में अपने कंडक्ट्स होते हैं रहने के, राइट, उन कंडक्ट्स के बियॉन्ड अगर आप जा रहे हैं, रह रहे हैं या कुछ ऐसा कर रहे हैं, तो आपको उस एरिया में जाने से रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। ओके, प्रोटेक्शन ऑफ शेड्यूल ट्राइब, जैसे आप शेड्यूल ट्राइबल एरिया जो होते हैं वहाँ पे आपके कुछ रिस्ट्रिक्टेड होता है, आप रिस्ट्रिक्टेड होते हैं कि आप वहाँ पे, या फिर कुछ वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं कि आप इतने किलोमीटर के दायरे में जा सकते हैं, बट इसके बियॉन्ड आपको एंट्री नहीं होगी जो इनसाइडर्स नहीं हैं उस एरिया के। आउटसाइडर इन द सेंस अदर स्टेट से आए हुए हैं, तो उनको उस एरिया में जाने का, या फिर वो पर्टिकुलर उस ट्राइब से बिलोंग नहीं करते हैं, वो किसी दूसरी रिलीजन या दूसरी कास्ट उससे बिलोंग करते हैं, तो उनको उस एरिया में नहीं जाने दिया जाएगा। इस तरीके से रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। ओके, उसके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो अलग अलग लॉज के थ्रू डिफाइंड है। फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस मतलब आपके इसमें भी 2 तरीके के राइट आते हैं। आपका रेजिडेंस का मतलब तो कि आप कहीं, आपका रहना, आप रह सकते हैं कहीं पे भी।
राइट टू रिसाइड एंड राइट टू सेटल। सेटल का मतलब परमानेंटली जहाँ आप बस चुके हैं, दैट इज योर सेटलमेंट। और टेम्परेरी सेटलमेंट फॉर अ टाइम पीरियड आप कहीं पर हैं। तो आपको दोनों तरीके का, आप देखते होंगे ना कि किसी का सपोज अभी दिन MP ओनली, आप सपोज आप इंदौर ही कोचिंग के लिए आए हुए हैं, आपका जो परमानेंट सेटलमेंट है वो किसी और शहर में है, बट टेम्परेरी आप यहाँ पर हैं अभी, तो आपको राइट है ना, राइट टू रिसाइड एंड सेटल in any part of your country. So this is a thing। और हाँ, restrictions होते हैं आपके ऊपर कि वहाँ पे आपको restrictions यहाँ पे भी लगा सकते हैं कि आप शेड्यूल ट्राइब का प्रोटेक्शन वाला हो गया, इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक हो गया, इन बेस दोनों चीज़ों में ये वाले रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन आपके लगते ही हैं। फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन। प्रोफेशन का मतलब होता है कि वही कि आपके पास आप किसी भी तरीके का ऑक्यूपेशन कैरी कर सकते हैं। जैसे इफ आई एम अ टीचर टुडे, देन इट इज़ माय राइट, लाइक आई कैन कैरी दिस प्रोफेशन, राइट। एंड ट्रेड हो गया, आपके बिजनेसेस हो गए। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन आपने जनरल पब्लिक के उस पर रखते हैं। इसमें आपको फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन में एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जैसे आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट की कुछ कुछ चीज़ों में मोनोपोली है कि सपोज कुछ कुछ चीज़ों में, नॉट एवरीथिंग, कि कुछ रेलवेज में जैसे अब तो प्राइवेट का इंक्लूजन हो चुका है प्राइवेट करने पर। अर्लियर जो था वो इंडियन रेलवे की मोनोपोली थी, उसमें प्राइवेट कंपनीज जो थी वो अलाउ नहीं है। अभी रिसेंटली पास्ट 2-3 ईयर से प्राइवेट कंपनीज का अलाउ हुआ है इंडियन रेलवे में। तो उस समय पर ये नहीं, वहाँ पे आप जाके वहाँ पे नहीं लगा सकते थे कि वाई इन दिस बिजनेस, क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट ये चीज़ कर सकती है अपनी मोनू, वहाँ पे ये वाली चीज़ फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन वाली चीज़ नहीं लगती है। वो गवर्नमेंट के पास वो अपने राइट होते हैं। इट्स द नीड ऑफ योर कंट्री, कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिसकी वजह से ऐसा करना पड़ता है। ओके। और प्रोफेशन हो गया, जैसे कुछ प्रोफेशंस ऐसे होते हैं जो जिनकी सपोज आपकी सर्विसेज ही हो गई, सर्विसेज में जो आपको ऑक्यूपेशंस मिलेंगी वो आपकी गवर्नमेंट लेके आ रही है, तो ये चीज़ें होंगी, तो वहाँ पे भी गवर्नमेंट के अपने राइट होते हैं। ओके फाइन। अदर देन दैट, हाँ, आप जैसे गेम्बलिंग हो गई, या ये आपका फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन में नहीं आता है। अब हम अगले राइट के बारे में पढ़ेंगे। सो हमने अंडर आर्टिकल 19 करीब 6 जो ये 6 राइट हैं इनको पढ़ लिए हैं। तो आपको सबसे पहले अगर मैं प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से बात करूंगी तो आपको प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से ये 6 राइट कौन कौन से आते हैं ये पता होना चाहिए। मैंने जो आपको बताया कि राइट टू प्रॉपर्टी पहले पार्ट था, 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 ने इसको हटाया, ये पता होना चाहिए आपको। तो ये प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से मेनली इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो इनकी इस चीज़ को याद रखिएगा। अगर आप इन केस इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर UPSC, बट आई एम नॉट सेइंग कि अरे आप MPPSC के लिए जा रहे हैं तो इस बात को नहीं, आप डिटेल में अच्छे से ही पढ़िए और हो सकता है कभी पूछ लिया जाए। बट स्पेसिफिकली आई एम टेलिंग यू कि अगर आप UPSC के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो प्लीज़ इनके जो रिस्ट्रिक्शंस हैं इनका मीनिंग जो है उसको वर्ड बाय वर्ड समझने की कोशिश कीजिएगा, तभी आप एक अच्छा आंसर लिख पाएंगे। ओके फाइन। प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, ये हमारा आर्टिकल 20 में है कि कन्विक्शन में भी हमारे पास कुछ राइट्स होते हैं। अगर कोई इंसान कन्विक्टेड हो जाए तब भी कोई क्राइम किया है और वो कन्विक्टेड हो तब भी उसके पास कुछ फंडामेंटल राइट्स होते हैं। ओके, सो इट ग्रांट प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी मतलब कि कोई लिमिट ही नहीं है, विदाउट लिमिट के ही उसके ऊपर कोई भी चार्जेस लगाए जा रहे हैं। ओके, आर्बिट्रेरी एक्सेसिव पनिशमेंट टू एन अक्यूज्ड पर्सन, और ये जो है आपके अवेलेबल होते हैं सिटीजन्स को, फॉरेनर्स को, लीगल पर्सन्स को। आपने देखा होगा अंडर आर्टिकल 19 इज ओनली अवेलेबल टू सिटीजन ऑफ इंडिया। ओके, सो इट इज अवेलेबल टू बोथ सिटीजन्स, फॉरेनर्स और legal person. Your protection in respect of conviction for offense.
इसके अंदर जो होते हैं 3 प्रोविजन होते हैं, इन 3 प्रोविजन को आप प्लीज अच्छे से समझिएगा। नो एक्स फैक्टो लॉ। इन नो एक्स फैक्टो लॉ का क्या मतलब होता है? नो वर्ड को हटा दीजिए, आप एक्स फैक्टो लॉ पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। एक्स फैक्टो लॉ का मतलब होता है रेस्ट्रोस्पेक्टिवली। रेस्ट्रोस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है कि कोई क्राइम आपने आज किया है सपोज, और तो उसको आप जो वो लॉ है वो उसको आप पिछली डेट से आप उसको लागू कर सकते हो। आज के टाइम में सपोज कोई लॉ है और वो आप लॉ बनाई गई है और आपने उस समय पे कोई आपसे ऑफेंस हुआ है, क्राइम आई वोंट से बट ऑफेंस कहूँगी मैं, और आपने कोई ऑफेंस किया है और कोई लॉ उस समय पे एग्जिस्ट नहीं करती थी, आज वो एग्जिस्ट करती है, तो चांसेस हैं कि वो रेस्ट्रोस्पेक्टिवली लग जाएगी। मतलब आपकी पिछले उससे आपको वो लॉ अप्लाई होने लगेगी आपके उस पर। तो नो एक्स फैक्टो लॉ, नो पर्सन शेल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफ एन एक्सेप्शन फॉर वायलेशन। नो का मतलब एक्स फैक्टो लॉ नहीं लगता है इस वाले केस में इन फोर्स एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ एक्ट। और ये जो नो एक्स फैक्टो वाला फैक्टर है, मतलब जो रेस्ट्रोस्पेक्टिवली नहीं लगेगी कोई लॉ आपके ऊपर, जिस टाइम पे आपने जो एक्ट किया है उस टाइम पे जो लॉ एग्जिस्ट करती है वही लॉ आपके ऊपर अप्लाई होगी, वो सिर्फ क्रिमिनल केसेस में होता है। ओके, यहाँ पे सिविल केसेस या फिर आप टैक्स जो है टैक्स केसेस हो गया, उन पे ये चीज़ नहीं लगती है। टैक्स आप पर पहले से किसी उसमें नहीं और चार्ज नहीं कर सकते हैं, जिस टाइम पे जितना होगा उतने टाइम पर करें। सॉरी, लाइक ओनली इन क्रिमिनल केसेस सिर्फ आपकी जो नो एक्स फैक्टो वाला लॉ का कॉन्सेप्ट है कि रेस्ट्रोस्पेक्टिवली ये नहीं लगता, प्रीवियस से जाके नहीं लगता, जिस टाइम पे जो ऑफेंस किया है उस टाइम पर नो पर्सन शेल बी कन्विक्टेड फॉर एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ एक्ट। जिस समय जो आपने गलती की है उस समय पे कौन सी लॉ उस गलती के लिए एग्जिस्ट करती थी वही लॉ आप पे लगेगी। नॉट सब्जेक्ट टू पेनल्टी ग्रेटर देन द प्रिस्क्राइब, और पेनल्टी भी आप पे उतनी ही लगेगी जितनी लॉ में लिखे, इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि इस ग्रांट प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरी एक्सेसिव पनिशमेंट के खिलाफ आपको ये क्या बोलते ये राइट अवेलेबल है, क्योंकि ना ही आपको लिमिटलेस कोई आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है, जो लॉ में जितना लिखा होगा उतनी कार्रवाई होगी, उतना आपको पनिशमेंट दी जाएगी। नो डबल जियोपार्डी। डबल जियोपार्डी का मतलब होता है कि 2 बार आपको किसी सेम एक गुनाह के लिए 2 बार सजा दे देना, तो ऐसा नो डबल जियोपार्डी भी इसमें आपका एक राइट होता है। नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। आप एक ऑफेंस के लिए, एक आपकी जो गलती हुई है आपको उसमें 2 बार नहीं सजा सुनाई जा सकती है, एक बार ही सजा आपको दी जाएगी। हाँ, इसमें एक एक्सेप्शन ये होता है कि अगर कोई प्रोसीडिंग, सपोज आपकी कोई ऑफिशियल प्रोसीडिंग है, किसी पे करप्शन के चार्जेस लगे, ओके, एक पनिशमेंट आपको दे दी गई जो कि आपकी कोर्ट ने दी उसको, ओके। सेकंड पनिशमेंट जो है, जो उसका ऑफिशियल डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट में वो था, अगर वो उसकी रैंक को रिड्यूस कर देता है या उसको सस्पेंड कर देता है तो वो डबल जियोपार्डी के अंदर काउंट नहीं होगा। ये बात आपको याद रखनी है। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मतलब होता है नो पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी विटनेस्ड अगेंस्ट हिमसेल्फ। ओके, तो अपने अगेंस्ट आप खुद विटनेसेस नहीं बनोगे, उसको फोर्स नहीं कि आप किसी को भी उसको फोर्स करने का हक नहीं होगा, या खुद को भी नहीं होगा कि अपने ही खिलाफ वो विटनेस की तरह पहुंच जाए, कि अपने ही खिलाफ बोले कि हाँ ऐसा मैंने, आप एक्सेप्ट कर सकते हो अपनी गलती को, बट उसको कंपेल नहीं किया जा सकता कि अपने खिलाफ आप जाके बोलो कि ये गुनाह मैंने किया है, कोई इससे जबरदस्ती नहीं कर सकता है। ओके,
but you have to remember one thing in no self incrimination वाला जो कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे आप इसमें ओरल और रिटन फॉर्म दोनों में ही आप जो है ना बोल के ना लिख के अपने अगेंस्ट क्या बोलते विटनेस की तरह नहीं जा सकते हो, मतलब उसको बोला जाए सीधा सीधा अगर मतलब रखा जाए तो आप उसको ज़बरदस्ती नहीं करवा सकते किसी को कि आपने रिटन फॉर्म में उससे ले लिया कि मैंने ये ऑफेंस किया है, आप उसने ज़बरदस्ती आपने उससे बुलवा लिया, ऐसा उसके पास राइट है कि उसको कंपेल नहीं किया जा सकता विटनेसेस के खिलाफ। बट हाँ, कुछ क्रिमिनल केसेस में कुछ जो राइट्स होते हैं वो वहाँ पे आपके लग जाते हैं कि जैसे आप से आपका थंब इम्प्रेशन लिया जा सकता है, ओके, और आपसे आपके सिग्नेचर लिए जा सकते हैं फॉर साइंटिफिक रीजंस होते हैं कि साइंटिफिकली उनकी जांच होती है, तो वहाँ पे जो है वो क्रिमिनल केसेस में ये यहाँ पे एक्सेप्शन आता है, वहाँ पे ये राइट आपके पास अवेलेबल नहीं होता है। यहाँ इन क्रिमिनल केसेस में इस टाइप के केसेस में आपसे इस टाइप की चीज़ें पूछी जा सकती हैं, ओके। तो ये आपको सेल्फ इनक्रिमिनेशन में डिफरेंस याद रखना है कि नो सेल्फ इनक्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है। अगर आपको जनरली एज स्टूडेंट्स को इस रेस्ट्रोस्पेक्टिवली और सेल्फ इनक्रिमिनेशन में डाउट रहता है, अगर आपको अभी भी कोई डाउट लगे तो मैं एक बार फिर से आपको नेक्स्ट क्लास में इसको फिर से समझा दूंगी कि सेल्फ इनक्रिमिनेशन का मतलब तो हो गया कि आपको ज़बरदस्ती नहीं की जाएगी, ओके, कि आप अपने खिलाफ विटनेसेस हो जाएं, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन होता है क्रिमिनल केसेस में बेसिकली कि अगर वहाँ पे कोई साइंटिफिक जांच करनी है तो अगर आपसे वो थंब इम्प्रेशन लिया जा रहा है, आपका सिग्नेचर लिया जाए, तो वहाँ पे ये राइट आपके पास अवेलेबल नहीं होता है, फाइन। और क्रिमिनल केसेस में आपकी रेस्ट्रोस्पेक्टिवली कोई लॉ नहीं लगती है, उस टाइम पे जो लॉ एग्जिस्ट कर रही है वही लॉ लगेगी। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 21 में ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये आपको राइट टू लिव विथ ह्यूमन डिग्निटी अश्योर करता है, और इसमें बहुत सारी राइट टू लिव में आपकी बहुत सारी चीज़ आती हैं, इवन राइट टू वाटर इज़ योर फंडामेंटल राइट, ये आपकी आर्टिकल 21 के अंदर बहुत सारी, आप राइट टू डाई इवन यूज योर फंडामेंटल राइट, कि आप एक डिग्निटी के साथ आपको मौत दी जा रही है या नहीं दी जा रही है, दैट इज ऑल्सो योर फंडामेंटल राइट। So protection of life and personal liberty, no person shall be deprived of his life और पर्सनल लिबर्टी, जो आप उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है उसको ली नहीं, एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ये एक्सेप्ट बहुत अच्छे से याद रखना है आपको, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, इंडिया में यही रूल फॉलो होता है, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, कि एक लॉ ने एक प्रोसीजर को इस्टेब्लिश्ड कर दिया कि इस तरीके से आप किसी को उस पर चार्जेस लगा सकते हो, और उस चार्जेस के खिलाफ जो एक्शंस एग्जीक्यूटिव लेगा वो उस पर लगेंगे। ये प्रोसीजर ने एक लॉ के थ्रू एक प्रोसीजर बना दिया कि अगर किसी ने इस तरीके का सपोज क्राइम किया है तो उस पर ये चार्जेस, इस एक लॉ का प्रोसीजर होगा कि अगर सपोज किसी ने कोई क्राइम किया है उस पर ये चार्ज लगेगा इस लॉ के थ्रू, अगर किसी ने कोई दूसरा चार्ज लगेगा, उस लॉ में जो प्रोसीजर्स डिफाइंड होंगे वो चार्जेस उसके ऊपर लग जाएंगे, लेकिन वो आपका हो जाएगा प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, और एग्जीक्यूटेड उस लॉ के थ्रू जो एक्शन लेगा उसके खिलाफ आप ये नहीं बोल सकते कि ये अनरीजनेबल है, क्योंकि अगर एग्जीक्यूटिव ने जो आपका उस लॉ को एग्जीक्यूट कर रहा है, अगर उस एग्जीक्यूटिव ने उस लॉ के जो प्रोसीजर था उसको फॉलो नहीं किया, तो आपका जो एग्जीक्यूटिव एक्शन है उसको बोल सकते हो आप कि ये एग्जीक्यूटिव एक्शन गलत है, वहाँ पे आपका राइट अप्लाई हो जाएगा। लेकिन अगर आपका एग्जीक्यूटिव लॉ के बेसिस पे गया है तो आप ये नहीं कह सकते कि दिस लॉ वाज अनरीजनेबल, दिस लॉ वाज नॉट फेयर, ये प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ नहीं कहता है, ये मेन चीज़ आपको याद रखना है। फिर हम लेटली भी आएंगे कि ऐसा हम क्यों नहीं कर सकते, क्या है, और भी चीज़ें हम देखेंगे।
अब इसमें एक फेमस केस आता है गोपालन केस। ये आपको केस याद रखने हैं, कभी कभी मैंने आपको पहले भी बोला है केस की डेट याद रखना, क्योंकि स्टेट पीएससी इनको अरेंज करने के लिए बोल देता है। और अब तो ऐसा भी मत सोचिए कि यूपीएससी नहीं दे, और यूपीएससी भी इस तरीके के पैटर्न रिवाइज करने लगा है, यूपीएससी भी ऐसे क्वेश्चंस आपको दे सकता है। सो इन गोपालन केस 1950 प्रोटेक्शन इज अवेलेबल ओनली अगेंस्ट, यही मैंने आपको बताया ना, आर्बिट्रेरी एग्जीक्यूटिव एक्शन की, जो एग्जीक्यूटिव ने अगर जो एक्शन लिया वो आपके लॉ में जो डिफाइन है उसके थ्रू नहीं गए, तो आप बोल सकते हो कि एग्जीक्यूटिव एक्शन जो है वो अनरीजनेबल है, लेकिन आप लॉ को गलत नहीं बोल सकते हो। नॉट फ्रॉम आर्बिट्रेरी लेजिस्लेटिव एक्शन से आपको नहीं बचाता है, यही प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है। ओके और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ को अपनाया है। मेनिका केस 1978 ने जो था ओवर रूल्ड कर दिया इस जजमेंट को। कैसे किया? उसने क्या कहा? इट रूल दैट राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ऑफ अ पर्सन कैन बी डिप्राइव्ड बाय अ लॉ प्रोवाइडेड द प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड बाय दैट लॉ इज रीजनेबल, फेयर एंड जस्ट है। अगर लॉ आपकी जो है वो सही है तो आप ले सकते हो, आपको राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी उस पर्सन की लेने का हक है। लेकिन अगर आपका जो अगर लॉ आपकी फेयर नहीं है, अनरीजनेबल निकली आपकी लॉ में जो प्रोसेस है वो भी अगर आपकी अनरीजनेबल है, तो उस लॉ को भी इनकरेक्ट बोला जा सकता है, उस लेजिस्लेटिव एक्शन को भी इनकरेक्ट बोला जा सकता है। ये आपका अश्योर किया था मेनिका केस ने। मेनिका केस हैज रूल्ड द गोपालन केस। तो ये दो वर्ड अगर आप इनका मीनिंग समझ लेंगे, जनरली ये मीनिंग समझने में ही गलती करते हैं बच्चे कि अगेंस्ट आर्बिट्रेरी एग्जीक्यूटिव एक्शन एंड नॉट फ्रॉम आर्बिट्रेरी लेजिस्लेटिव एक्शन। और तो इन दोनों का अगर डिफरेंस आपको क्लियर है तो आपको ये समझ में आ जाएगा प्रोसीजर और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में डिफरेंस क्या होता है। आई होप आई एम क्लियर टू यू इन दिस टॉपिक। आर्टिकल 21A स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी, ये पार्ट है आर्टिकल 20। हाँ एक और चीज, ये जो राइट टू लाइफ विथ पर्सनल लिबर्टी है ना, ये सिर्फ आपका एक अपने आप में ही एक ब्रॉडर टॉपिक है। आपकी लाइफ से रिलेटेड जो भी इसेंशियल बेसिक एलिमेंट्स होते हैं वो आपकी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टीज़ में आते हैं। और केस बाई केसेस किस तरीके के जजमेंट्स को इसमें डाला गया, ये मैं आपको, इवन योर राइट टू प्राइवेसी इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ योर राइट टू लाइफ एंड हिज पर्सनल लिबर्टी। आपकी प्राइवेसी भी आपका हक है। ओके एंड वन मोर थिंग यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस। जो मैंने आपको एक बात बोली थी कि आपको राइट टू डाई भी है, राइट टू डाई विद डिग्निटी, ये भी आपका एक राइट है। एक बहुत ही सुंदर केस था, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था बेसिकली, अरुणा सांवे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2011 केस। तो जो अरुणा जी थी वो वेजिटेटिव स्टेट पर थी बहुत सालों से। ओके तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिए थे, दो जजमेंट दिए थे कि आपको राइट टू डाई विथ डिग्निटी है। अगर पैसिव यूथेनेशिया और एक्टिव यूथेनेशिया, दो कॉन्सेप्ट उन्होंने दिए थे। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये, बट इफ़ यू नो अबाउट इट तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। कभी किसी इस तरीके का टॉपिक आता है, अगर आपको आंसर राइट करने के लिए, तो आप उस पर लिख सकते हैं। पैसिव यूथेनेशिया और एक्टिव यूथेनेशिया में डिफरेंस क्या होता है? एक्टिव मतलब कि आपने नोइंगली किसी को डेथ दे दी, सपोज आपने कोई किसी को लीथल इंजेक्शन दे दिया, दैट इज एक्टिव, दैट यू कांट डू, ओके, दैट इज अ क्राइम। बट पैसिव यूथेनेशिया है कि कोई अपनी इस स्टेज में नहीं है कि वो कोई इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सके। ओके सपोज वो वेजिटेटिव स्टेज में है, जहाँ से वो कई सालों से ऐसा, इस अवस्था में, सपोज कोई व्यक्ति, अरुणा सांवे केस इसी बात पर डिफाइंड था। शी वॉज फॉर आई थिंक मोर देन पास्ट 30 ईयर्स शी वॉज ऑन वेजिटेटिव स्टेज एंड
तो उनको ये इनका केस एक नर्स ने सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई किया। उन्होंने उनके लिए इस राइट टू डाई विद डिग्निटी के लिए उन्होंने इस केस को लिया, और सुप्रीम कोर्ट ने फिर इसका जजमेंट दिया कि यस यू हैव द राइट टू, उसके और भी कंडीशंस थे पर वो इतना जाने, बट यू हैव द राइट टू डाई विथ ह्यूमन। कभी पूछा, अगर आपको प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आपको राइट टू डाई है, तो उसमें आप बोल सकते हो कि राइट टू डाई इज ऑल्सो कम्स अंडर राइट टू लिव एंड पर्सनल लिबर्टी। तो ये केस था जो आपको माइंड में रखना है। पैसिव और एक्टिव यूज़। पैसिव यूथेनेशिया बेसिकली होता है कि आपके उस वेजिटेटिव कैरेक्टर स्टेज में अगर कोई है, किसी लाइफ सपोर्ट सिस्टम के थ्रू किसी की लाइफ रन कर रही है और इट्स बीन अ वेरी लॉन्ग टाइम और वो कोई इन्फॉर्म डिसीजन नहीं ले सकता, तो उसको उसके सपोर्ट सिस्टम को हटा दीजिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको डायरेक्ट डेथ दे दें, बस उस सपोर्ट सिस्टम को हटा दीजिए और नेचुरल प्रोसेस की तरह वो जैसे भी नेचुरल प्रोसेस में इंसान की डेथ होती है उसको होने दीजिए। ये राइट टू डाई विथ डिग्निटी होता है। आर्टिकल 21A भी आपका आर्टिकल 21 के अंदर आपका राइट होता है कि एलिमेंट्री एजुकेशन जो होती है आपकी 6 ईयर टू 14 ईयर ऑफ योर एज, इसको एक एक्स्ट्रा राइट इसमें क्या दिया गया, ये आपका 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आया। ये अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके द्वारा 3 चीज़ें लाई गई। एक था आपका डीपीएसपी में चेंज ला गया, जब हम डीपीएसपी पढ़ेंगे तब मैं वहाँ पे आपको बताऊंगी। एक आपकी फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई। अगर आज हम फंडामेंटल ड्यूटी को कवर कर पाए तो मैं आपको फंडामेंटल ड्यूटी में उसके बारे में बताऊंगी। वो मोस्ट प्रोबली आज हम कवर कर लेंगे फंडामेंटल ड्यूटी को। और ये जो है आर्टिकल 21A, आर्टिकल 45 इन योर डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। आर्टिकल 21A इज इन योर अंडर आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, एंड योर 11th फंडामेंटल duty. Those comes from 86th Constitutional Amendment Act of 2002. इसको हम अगर कोई आपसे पूछे द dawn of the second revolution in the chapter of citizen right, क्योंकि आपके नागरिक होने का हक है, वो क्या है, तो that is your article 21A which gives you the state को provide कराना पड़ेगा free and compulsory education। फ्री भी है और कंपलसरी भी है स्टेट के ऊपर कि वो सारे चिल्ड्रंस इन द एज ऑफ 16 to 14 उनको पढ़ने का हक दे, फ्री और कंपलसरी एजुकेशन उनको दे, और स्टेट अपने तरीके से उसका प्रोसीजर डिटरमाइन कर सकती है। इन परसुएंस ऑफ आर्टिकल 21A, पार्लियामेंट की आर्टिकल 21 को करने के लिए पार्लियामेंट ने इम्प्लीमेंट करने के लिए एक्ट लिया है, पार्लियामेंट्री राइट टू चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट, जिसे हम RTE एक्ट भी कहते हैं, 2009। एंड ऑलवेज रिमेंबर द डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर PSC एग्जाम्स। अब हम आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर टू यू, एंड जो इसकी लिस्ट है कि एक जस्ट फॉर योर रिमाइंडर एंड अपने माइंड का हो सके तो आप प्लीज़ जब मैं इस तरीके से आपको बोलती हूँ कि जब वो पढ़ाने के पर्सपेक्टिव से इतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, बट मैं आपको मीनिंग समझा चुकी होती हूँ, लेकिन उसमें अगर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो आपको सिर्फ रीड आउट करने के लिए ही हैं, तो आप प्लीज़ एक खुद मैं उस चीज़ को अपलोड करूँ उसके पहले आप प्लीज़ खुद से जाके भी उन पॉइंट्स को देख लीजिए। अब जैसे आप जाएंगे तो आप इस बात को ज़रूर लिखिए कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अंदर और कौन कौन से ड्रॉ हो सकते हैं, इससे कौन कौन से राइट्स निकल के आ सकते हैं ओवर द टाइम पीरियड्स। बहुत सारे जजमेंट्स के साथ भी उन राइट को डिफाइन किया गया है, तो आप प्लीज़ इस लिस्ट को जाके चेक कीजिए और मैं डाल दूंगी मेरी तरफ से, लेकिन आप प्लीज़ एज अ बिकॉज स्टूडेंट नोट एंटायरली ऑलवेज डोंट डिपेंडेंट ऑन वन थिंग, ओके। खुद से भी जब आप ये करने की आदत डाल देंगे ना, तो ये आपके लिए ही ओवर द टाइम पीरियड बेनिफिट करेगा, ओके। एंड समटाइम आई कुड ऑल्सो बी रॉन्ग ना, सो बेसिकली स्टूडेंट एंड टीचर ऑलवेज हैव अ सिम्बायोसिस रिलेशन, गिविंग एंड टेक।
आपको मैं अगर कुछ बता रही हूँ तो आई कैन ऑल्सो गेट समथिंग फ्रॉम यू, सो आई कुड डेवलप दैट थिंग इन माई टीचिंग स्टाइल एंड वट एवर योर रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू यू, मैं उसको फिर यहाँ पे लेके आ सकती हूँ, आपको उस तरीके से पढ़ा सकती हूँ. Second thing, we will go for Article 22. Okay. Article 22 also very important article. These all fundamental rights article are very important. इनको समझना थोड़ा complicated हो जाता है, तो बट आप इनको कई बार जब पढ़ेंगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आने लगेंगे. प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, मतलब आपको गिरफ्तार कर लिया गया, कुछ समय के लिए आपको डिटेन कर लिया गया, तो वहाँ पे भी आपके पास ये राइट्स होते हैं. सो देयर आर टू डिटेंशन के दो टाइप होते हैं. वन होता है आपका प्यूनिटिव डिटेंशन एंड वन इज प्रिवेंटिव डिटेंशन. पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे. प्यूनिटिव डिटेंशन क्या होता है? इज टू पनिश अ पर्सन फॉर एन ऑफेंस कमिटेड बाय हिम आफ्टर ट्रायल. ये आपको पनिशमेंट कब मिलती है? जब आपका ट्रायल पीरियड और आपको कन्विक्शन कोर्ट ने जब ट्रायल के बाद कन्विक्शन दे दिया तब होता है. ट्रायल क्या होता है? ट्रायल मतलब कि आपने देखा होगा कि आज वो इंसान पेशी पे गया है, राइट? तो ये ट्रायल्स होते हैं आपके, जहाँ पे हर एक या तो एक बार में आपको जजमेंट्स मिल जाएगा, या फिर जजमेंट्स आपको धीरे धीरे आपका प्रोसीजर जैसे आगे बढ़ते जाएगा, और एट द लास्ट आपको जो कंक्लूजन के रूप में, जो पनिशमेंट के रूप में आपको सजा, तो आप कन्विक्टेड करार दे दिए जाते हो. दैट इज अ कन्विक्शन. इफ यू आर वेरी न्यू टू द पॉलिटी टॉपिक एंड यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स, इसलिए मैं आपको भी वर्ड बाय वर्ड आपको चीज़ को बात को समझाती चली जाती हूँ. Punitive detention is to punish a person for an offense committed by him after trial and conviction in a court. जो punishment आपकी ट्रायल और कन्विक्शन के बाद मिलती है वो उस डिटेंशन के अंदर आता है. अब इसके अंदर आपको राइट्स क्या क्या अवेलेबल होते हैं कि आपका ट्रायल भी ट्रायल के पहले के राइट्स हैं आपके. ओके, तो ट्रायल्स के पहले के आपके राइट्स क्या क्या आते हैं वो हम जानते हैं. राइट ऑफ पर्सन हु इज अरेस्टेड एंड डिटेन्ड अंडर ऑर्डिनरी लॉ. तो क्या होगा? आपको इन्फॉर्मेशन, जिसको आप अरेस्ट कर रहे हो पहले उसको इन्फॉर्म करो कि आपको किस ग्राउंड पे अरेस्ट किया जाता है, उसको ये जानकारी देना आवश्यक होती है. ये आपका राइट है. राइट टू कंसल्ट एंड बी डिफेंडेड बाय लीगल प्रैक्टिशनर. आपका राइट होता है कि आपको एक लीगल, अगर आप अफोर्ड भी नहीं कर सकते तो आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड कराएगी एक लीगल प्रैक्टिशनर. ओके, सो राइट टू कंसल्ट एंड डिफेंड बाय लीगल प्रैक्टिशनर, ये आपका राइट है. राइट टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स इंक्लूडिंग जर्नी टाइम. जब आपको अरेस्ट किया गया तो उसका जो जर्नी पीरियड होगा वो जर्नी पीरियड भी आपके 24 आवर्स में काउंट होता है. So that is the one. Right to be released after 24 hours unless the magistrate authorize further detention. अगर मजिस्ट्रेट ने नहीं बोला कि आप इसको डिटेन करके रखिए तो आपको रिलीज भी कर दिया जाएगा, और अगर मजिस्ट्रेट ने बोल दिया डिटेन करके रखिए, आगे जो भी प्रोसीजर्स होंगे वो आपको फॉलो अप करने रहेंगे, और आपको एक लीगल प्रैक्टिशनर मिलेगा. आपको अरेस्ट होने से पहले आपका राइट किस ग्राउंड पे आपको अरेस्ट किया जा रहा है ये पता होना चाहिए. और ये जो राइट हैं वो सिर्फ these rights are not available to person arrested and detained under preventive detention में नहीं होता है. आपको ये जो राइट्स हैं आपको punitive detention में ही हैं. only apply to when act are criminal और quasi criminal in nature. अगर क्रिमिनल एक्ट आपने कोई किया है तो आपको ये राइट अवेलेबल है, अदरवाइज आपको ये राइट अवेलेबल नहीं है. और दूसरी की चीज़, आपको ये प्रिवेंटिव डिटेंशन में ये राइट अवेलेबल नहीं है. अब प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है अब हम जानेंगे. प्रिवेंटिव डिटेंशन का बेसिकली मतलब होता है कि इन फ्यूचर आपको क्राइम करने से रोकना. दिस इज़ द ओनली. प्रिवेंटिव मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को पहले से किसी चीज़ के लिए स्टेप ले लेना. और डिटेंशन मतलब आपको डिटेन करके रखना. तो मीन्स ऑफ डिटेंशन ऑफ पर्सन विदाउट द ट्रायल conviction by a court, the purpose to prevent person from committing an offense in near future. अब प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर आता क्या होता क्या क्या है? प्रिवेंटिव डिटेंशन में जब किसी को रखा जाता है तो आपकी जो टाइम पीरियड है वो मोर देन 3 मंथ नहीं होना चाहिए.
किसी को भी आप बिना उसका ट्रायल प्रोसीजर और बिना कन्विक्शन के अगर उसको डिटेन करके रखा जा रहा है, उसके ऊपर कोई सस्पिशन है कि ये इंसान इस तरीके का क्राइम नियर फ्यूचर कर सकता है, तो इस व्यक्ति को उस क्राइम को करने से रोकने के लिए आपको डिटेन करके रख लिया, बट नॉट मोर देन 3 months. यू हैव टू रिमेंबर दिस वर्ड. ओके, एक्सेप्शन जरूर होता है इसमें. एक्सेप्शन ये होता है कि कोई एक एडवाइजरी बोर्ड होगा जो अपनी रिपोर्ट जिसने दे दी, उसमें किसका इंक्लूजन जरूरी है? जज ऑफ हाई कोर्ट का होना उसमें बहुत ज़रूरी है. ओके, तभी वो एडवाइजरी बोर्ड बनेगा. एडवाइजरी बोर्ड बनाने का हक किसके पास होता है? ये हक पार्लियामेंट के पास होता है. ओके, एंड द ग्राउंड ऑफ डिटेंशन शुड बी कम्युनिकेटेड टू डिटेन्ड पर्सन. क्यों उसको रखा गया उसको आपको बताना पड़ेगा. आप ऐसे ही जाके नहीं किसी को बंद करके रख लेंगे. द डिटेन्यू शुड बी अफोर्डेड एन अपॉर्चुनिटी टू मेक रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट डिटेंशन ऑर्डर. आप वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकता है डिटेंशन ऑर्डर. एक अपॉर्चुनिटी तो उसको देने का हक होता है उसके पास. लेकिन हाँ, कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि बहुत ही ज़्यादा क्रिमिनल इन नेचर हैं या उसका कुछ प्रभाव पब्लिक पर पड़ेगा, तो फिर वहाँ पे एक्सेप्शंस लग जाते हैं. ओके, सो कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है आपका प्रिवेंटिव डिटेंशन पे जो लॉ बनाने का पावर है, मैंने आपको एक चीज़ बनाई, पार्लियामेंट के पास किस तरीके का पावर है. पार्लियामेंट के पास पावर है जो ये डिटेंशन होता है उसका जो प्रोसीजर होता है उसका पावर आपका पार्लियामेंट के पास है. लेकिन प्रिवेंटिव डिटेंशन की जो लॉज बनती हैं उसका पावर किसके पास शेयर होता है? आपका दोनों के बीच में. आपका स्टेट एंड पार्लियामेंट लेजिस्लेचर. इवन स्टेट लेजिस्लेचर की भी अगर किसी सिक्योरिटी को खतरा है तो स्टेट लेजिस्लेचर अपने एक्ट ला सकता है. ऐसे बहुत सारे एक्ट्स हैं जो इसके अंदर लाए गए हैं. राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन का के अंदर कौन से, इसके अंदर 2 आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24. थोड़ा 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं. आप तब तक इन प्रीवियस आर्टिकल्स को थोड़ा, स्पेशली आर्टिकल 22, इसको थोड़ा ध्यान कीजिए. जस्ट इन अ सेकेंड वी विल टॉक. ओके, अब अगले आर्टिकल के पर जाते हैं हम. राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. इसको स्टार्ट करने से पहले अगर आपको कभी भी कोई भी समझ में ना आए कोई भी वर्ड या कोई टॉपिक, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए. मैं आपको नेक्स्ट क्लास में उसको रिपीट कर दूँगी. ओके, अगर कोई मिस्टेक होगी तो अपनी तरफ से उसमें सुधार करने की पूरी कोशिश करूँगी. राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23. इसमें 2 आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24. वन इज प्रोहिबिटेड ट्रैफिकिंग ह्यूमन बीइंग, बेगार एंड अदर फॉर्म ऑफ फोर्स्ड लेबर. बेगार का मतलब होता है फोर्सफुली किसी को करना कि आप ये काम कीजिए. ठीक है. अब ट्रैफिक का मतलब क्या होता है? ट्रैफिक मतलब नॉट योर रोड वाला ट्रैफिक, दैट इज इन ह्यूमन, इन पर्सन. उसके अंदर एज अ ह्यूमन बीइंग क्या ट्रैफिक का मतलब होता है? मतलब सेल करना. सेल किया आपने, बाय किया. ऐसे केसेस आप बहुत न्यूज़पेपर्स में देखते होंगे कि इतनी बंचेस ऑफ गर्ल्स को यहाँ पे बेचा जा रहा है. राइट. सो सेलिंग एंड बाइंग ऑफ मैन, वुमन, चिल्ड्रंस को गुड, लाइक जैसे हम गुड्स का बेसिकली हम यहाँ वहाँ बेचते हैं ना, कि इस कंट्री से उस कंट्री से, इस राज्य से उस राज्य में सेल आउट किया जा रहा है. उसी तरीके से ह्यूमन बीइंग का सेल आउट करना. चिल्ड्रंस लाइक गुड्स इमोरल अट्रैक्टिव, उसको प्रोस्टिट्यूशंस में डाल देना, देवदासीज बना देना, स्लेवरी की तरह, एक स्लेव की तरह यूज़ करना. ये आपका मीनिंग ऑफ ट्रैफिक होता है. ये आपके राइट्स इन इस टाइप के एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ आपके पास राइट्स होते हैं. मीनिंग ऑफ बेगार. बेगार का मतलब होता है आपका कंपल्सरी वर्क विदाउट रिम्यूनरेशन. रिम्यूनरेशन का मतलब आपको कुछ नहीं दिया जा रहा है. बेगार दोनों टाइप का हो सकता है. आपका
फिजिकल भी हो सकता है, फिजिकल मतलब फोर्सफुली आपको भी मार के करके आपको फिजिकल पावर का यूज़ करके आपसे कोई काम करवाया जा रहा है। एक और टाइप का बिगाड़ इस टाइप का होता है, फोर्स्ड लेबर होता है, दैट इज कि आपको दी तो जा रही हैं आपको वेजेस, लेकिन आपकी मिनिमम वेजेस जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उतनी तो आपको दी ही नहीं जा रही हैं। दैट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ फोर्स्ड लेबर। ओके, आई होप आई एम clear to you in this topic. Now we will move forward, that is your article 24. हाँ, एक और बात आपको याद रखनी, कुछ अगर गवर्नमेंट आपको मिलिट्री सर्विस करने कुछ नीड है उस टाइम पे, अगर उन सर्विसेज के लिए आपको बुला रही है, पब्लिक से बोला जा रहा है कि अभी इस समय पे कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाती है होगा, तो वहाँ पे आप यहाँ एक्सप्लॉयटेशन वाला कि उनसे ज़बरदस्ती करवा रहे हैं। कुछ आपकी मोरल ड्यूटीज़ होती हैं आपके नेशनल आपके राष्ट्र के प्रति, तो आपको वो मोरल ड्यूटीज़ अगर फुलफ़िल करना हुआ, गवर्नमेंट उस समय आपकी आवश्यकता है, ऐसा कुछ कंट्री में ज़रूरत आ पड़ी, कुछ ऐसी नेशनल इमरजेंसी है जिस टाइम पे ऐसी ज़रूरत है, तो अगर गवर्नमेंट उस टाइम पे आपसे बोल रही है तो आपको करना पड़ेगा। वहाँ पे आपके पास ये राइट नहीं अवेलेबल होता है। ओके, आर्टिकल 24 प्रोहिबिटेड्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14। ये याद रखना, बिलो द एज ऑफ 14, अगर कोई बच्चा 14 साल से कम है तो वो फैक्ट्री, माइनिंग एरियाज और जो भी हजार्डस एक्टिविटीज जैसे कंस्ट्रक्शन वर्क, रेलवेज, यहाँ पे प्रोहिबिटेड है काम करने से। आपका 14 साल से छोटे का जो बच्चा है वो ये काम इन जगह पे प्रोहिबिटेड है, इट्स अ क्राइम। ओके, और इसके लिए एक्ट्स भी आए हैं जिनमें इसको एज अ पनिशेबल ऑफेंस ये माना जाता है। इट डज नॉट प्रोहिबिटेड देयर एम्प्लॉयमेंट इन एनी हार्मलेस इनोसेंट वर्क है। कोई सपोज खुद की आपकी कोई व्यापारी है, उसकी खुद की अपनी एक शॉप है, अगर उसका बच्चा वहाँ पे आके बैठ जाए और थोड़ा बहुत कोई काम देख ले तो दैट वुडंट काउंटेड एज अ हार्मलेस वर्क। बट हाँ, अगर आप किसी और के बच्चे को 14 साल से वो कम है और वहाँ पे आप उससे मजदूरी करा रहे हैं तो ये क्राइम में आएगा। इन 2006 मजदूरी आप किसी बच्चे से नहीं करा सकते हैं। कुछ नॉर्मल ऐसे ही वर्क है, लाइट वेटेड या फिर कुछ पेपर वर्क है, तो दैट दोज आर द लाइट वर्क्स। अगर वो कोई हेल्प कर रहा है अपने फादर की किसी तरीके से तो दैट वुडंट काउंटेड एज कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में वो नहीं आएगा। इन 2006 गवर्नमेंट बैंड द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एज डोमेस्टिक सर्वेंट और वर्कर इन बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट लाइक होटल्स, ढाबास, रेस्टोरेंट एंड शॉप। ये इसी डेफिनेशन के अंदर यहाँ पे आप 14 साल से छोटे का बच्चा काम नहीं कर सकता। और इस आर्टिकल के अंदर जो इस आर्टिकल को इम्प्लीमेंट कराने के लिए जो लॉ इम्पोर्टेंट लाई है, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। इवन आपका प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड के लिए चाइल्ड कमीशन भी आपका आया। ओके, सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉ इन दिस आर्टिकल, वो उसके बारे में भी, चाइल्ड कमीशन के बारे में भी हम पढ़ेंगे क्योंकि वो आपकी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ का पार्ट है, आपके सिलेबस का पार्ट है, तो उसके बारे में भी हम जानेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉ इन दिस डायरेक्शन इज चाइल्ड एडोलेसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 है आपका, ये याद रखना। सो वी आर डन विद अप टू वी हैव कम्प्लीटेड आपकी जो 6 राइट है, फंडामेंटल राइट है, उनमें हमने राइट टू फ्रीडम कंप्लीट, राइट टू इक्वेलिटी कंप्लीट कर लिया, राइट टू फ्रीडम कंप्लीट कर लिया, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन कंप्लीट कर दिया। अब राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स, आपके माइनॉरिटीज़ के लिए जो राइट्स हैं, आपका रेट जो हैं, ये कुछ आपके टॉपिक बचे हैं। अब मैं इनको वन बाय वन, लगभग आप कल इस फंडामेंटल राइट्स को हम क्लोज कर देंगे, कंप्लीट हो जाएगा। मैंने एक साथ इसलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, तो अप टू यहाँ तक आई होप आपको क्लियर होगा। अगर कोई भी आपको इशू लगा हो तो, और जो इसमें कॉम्प्लेक्सिटी होगी उसको मैं फिर से एक बार आपको बता दूंगी जब हम ये फिनिश कर लेंगे।
Okay, so we will move forward with one topic, that is your fundamental duties. Fine. तो फंडामेंटल ड्यूटीज क्या होती हैं? आपके कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं। फंडामेंटल क्या होता है? आपकी बेसिक कोई लॉज होती हैं जो कि आपके कंट्री को गवर्न करने के लिए ज़रूरत होती हैं। तो फंडामेंटल राइट्स हैं जो उस कंट्री के नागरिक के लिए भी ज़रूरी है। इसलिए उसी तरीके से नागरिक की कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी होती हैं जिसे उन्हें फुलफिल करना भी ज़रूरी है। अब ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ वाला कॉन्सेप्ट है, जब कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ था तब नहीं आया था। ओवर द टाइम पीरियड जब रिक्वायरमेंट लगी, स्पेशली 1975, तो जब इमरजेंसी आई थी आपकी इंटरनल, उसके बाद कुछ डिस्टर्बेंस को देख के इस फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ला गया। अब वो डिस्टर्ब आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड की गई थी आपकी पार्ट 4A में, आर्टिकल 51A, ओके, एंड 42nd अमेंडमेंट एक्ट, ये आपको याद रखना है। आर्टिकल 51A विथ 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। तो किसके रिकमेंडेशन पे? स्वर्ण सिंह कमेटी 1976, ये आपको याद रखनी है। स्वर्ण सिंह कमेटी, आर्टिकल 51A एंड पार्ट 4A, ये बेसिक चीज़ें आपको याद रखनी है प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से। और जब मैं प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव बोलती हूँ उसका मतलब ये नहीं है कि आप मेंस में जब आप इन चीज़ों को अप्लाई कर देते हैं ना, आर्टिकल्स हो गए आपके, कोई अमेंडमेंट हो गया आपका, जब पॉलिटी के आंसर्स राइटिंग आप कर रहे हैं, कोई कमिटीज़ हो गई जिन्होंने ये रिकमेंडेशन दी, तो आपका वो आंसर एनरिच्ड लगता है कि उसमें वेटेज आ जाता है कि इस बच्चे को इस बारे में पता है, इस बच्चे को इस प्रीवियस नॉलेज की बारे में जानकारी है कि आखिर ये कहाँ से एग्जिस्ट करता है। ये आपके इस बात को भी दर्शा देता है कि ये बच्चे सिलेबस से भी वेल अवेयर्ड है कि ये कहाँ पूछा जा रहा है इस बात को। ओके, ओरिजिनली जब स्वर्ण सिंह कमेटी ने रिकमेंडेशन दिए तब हमारे पास सिर्फ 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी, ओनली 10। 11th जो मैंने अभी प्रीवियसली भी आपको बताया, जहां हमारा आर्टिकल 21A ऐड हुआ था, इस 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने 3 चेंजेस लाए आपके फंडामेंटल राइट, DPSP एंड ड्यूटीज़ में। वहाँ आपका 21A, और ये बेसिकली आपके चिल्ड्रन से ही रिलेटेड है कि राइट टू एजुकेशन से ही मेनली ये रिलेटेड है, उसके चिल्ड्रन के वेलफेयर से ही रिलेटेड है। तो एक 11th फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई, दैट इज़ वो ऐड की गई आपकी लेटरली 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अब फंडामेंटल ड्यूटीज़ में इम्पॉर्टेंट क्या है एग्जाम पर्सपेक्टिव से? डेफिनेटली ये पॉइंट्स तो हैं, बट जो आपकी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, इनमें सबसे ज़्यादा आपको याद रखने के लिए क्या ज़रूरत है? इनको भी 1 by 1 याद रखने के लिए ज़रूरत है। आप अगर बहुत छोटे छोटे से वर्ड्स याद रख लेंगे कि अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशनल, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, इनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए आपको। आइडियल्स होते हैं फ्रीडम स्ट्रगल के, उनको फॉलो कीजिए। प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, डिफेंड कीजिए कंट्री को। जब ऐसी कोई आपको बुलाया जाए, उस समय पे आपकी आवश्यकता हो, तो एज अ नागरिक भी आपके कुछ राइट्स होते हैं। डेवलपिंग द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, ब्रदरहुड कौन बना सकता है? आपस में भाईचारा। अब गवर्नमेंट आपको फोर्स तो नहीं करेगी, दो इट इज़ योर प्रियम्बल में भी एक बात की यूनिटी इंटीग्रिटी ऑफ नेशन आपको बनाए रखना चाहिए। तो यहाँ पे कहीं एक सिटीजन की भी ड्यूटी है उस चीज़ को बनाए रखने की। तो कॉमन ब्रदरहुड को, आइडिया को प्रमोट करता है। अपने कल्चर को प्रमोट करना भी आपकी जिम्मेदारी में भी आता है। नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी सिर्फ गवर्नमेंट तो नहीं, लॉज एंड रेगुलेशन ला के आप पे ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते। आपने देखा होगा कि स्वच्छ भारत अभियान अकेला गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी कहाँ तक है कि आपके दरवाजे पर आकर एक कलेक्शन करने के लिए लोग आएंगे, लेकिन उस कलेक्शन को वहाँ तक ले जाने के लिए आपकी जिम्मेदारी है। आप जब किसी शॉप पर जाके, किसी ईटिंग शॉप पे जाके आप कुछ खाते हैं, वहाँ पे अगर आप गंदगी फैला रहे हैं, तो ये सिर्फ एक गवर्नमेंट की जिम्मेदारी तो नहीं है ना, ये आपकी भी जिम्मेदारी है। तो दोज आर योर ड्यूटीज़। डेवलपिंग साइंटिफिक टेम्पर एंड ह्यूमैनिटी। साइंटिफिक टेम्पर का मतलब होता है कि
अनरियलिस्टिक जो ये चीज़ें होती हैं ना, कि बेसिकली अगर एक हिंदी टर्म में बोले, जो आपके जादू टोने होते हैं, उन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। अगर आपको किसी चीज़ का इलाज कराना है तो आप साइंटिफिकली, आपके पास प्रोसीजर्स अवेलेबल हैं, आपके पास डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, इन डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, एलियोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक्स, आप उनके पास जाइए, उनसे इलाज कीजिए, ना कि फालतू की चीज़ें। तो इस साइंटिफिक टेम्पर को ही उसका करने में, उसमें क्या होता है, आप एक ह्यूमैनिटी को अननेसेसरली हार्म कर देते हैं। ओके, safeguard the public property and avoid violence, strive for excellence in all sphere of your life, duty of, यही आपकी 11th फंडामेंटल ड्यूटी है, जो कि सारे पेरेंट्स और गार्जियन की ड्यूटी है। ये गवर्नमेंट की ड्यूटी क्या है, गवर्नमेंट आपको फंडामेंटल राइट दे रही है, राइट टू एजुकेशन, बट एज अ सिटीजन आपकी वहाँ पे क्या ड्यूटी है, एज अ सिटीजन पेरेंट्स की ड्यूटी है अपने बच्चों को स्कूल भेजना। वहाँ गवर्नमेंट वहाँ तो नहीं ज़बरदस्ती जाके उनको घर से लेके आ सकती, वहाँ आपकी ड्यूटी है कि आप स्कूल भेजिए, उस स्कूल में एजुकेशन देना गवर्नमेंट की ड्यूटी है। सो दैट इज़ योर फंडामेंटल राइट, जहाँ गवर्नमेंट आपको एजुकेशन प्रोवाइड कराएगी, लेकिन उस स्कूल तक आने के लिए ड्यूटी किसकी बनती है, आपकी। सो दैट इज़ योर फंडामेंटल ड्यूटी विच हैज़ added by the 86th Constitutional Amendment Act 2002. फीचर्स ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या हैं? कुछ इसमें आपकी मोरल ड्यूटीज़ होती हैं, कुछ आपकी सिविक ड्यूटीज़ होती हैं, कि जैसे अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करके रखिए, अपने इन्वायरमेंट की को सुरक्षित रखिए, ये आपकी सिविक ड्यूटीज़ में आ गई। मोरल ड्यूटीज़ यही होती हैं कि आप मोरली जो सोसाइटी का कंडक्ट होता है, जो चीज़ें होती हैं उनको फॉलो कीजिए। दोज आर योर मोरल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटी आर ओनली कन्फाइंड टू सिटीजन। ये बात आपको देखना ज़रूरी है कि ये सिर्फ कन्फाइंड टू सिटीज़न है फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़ फॉरेनर्स पर नहीं लगती हैं। जैसे आपने फंडामेंटल राइट्स में डिफरेंस पढ़े कि कुछ राइट्स सिटीजन्स को अवेलेबल हैं, कुछ राइट्स फॉरेनर्स एंड सिटीजन बोथ को अवेलेबल हैं, बट जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो उस देश के नागरिक की है। ओके, फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर नॉन जस्टिसेबल, मतलब आप इनकी एनफोर्सबिलिटी के लिए कोर्ट नहीं जा सकते। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ नॉन जस्टिसेबल। एंड व्हाट इज़ जस्टिसेबल? फंडामेंटल राइट इज जस्टिसेबल एंड मोस्टली कंटेन वैल्यूज ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। आपकी पॉलिटिकल, सोशल और कल्चरल सिस्टम जो आपका इंडिया का है, उसी के बारे में मोस्टली उन्हीं वैल्यूज़ को रखा गया है। ये आपके फीचर्स है फंडामेंटल ड्यूटीज़ के। एनफोर्सेबल बाय लॉ, यहाँ मैं एनफोर्सेबिलिटी बाय कोर्ट की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे लॉ की बात हो रही है। मतलब क्या है इस चीज़ का, ये नहीं। बाय कोर्ट का तो मतलब हुआ कि आप कोर्ट जाएंगे इनको इम्प्लीमेंट कराने के लिए, ये राइट आपके पास फंडामेंटल ड्यूटी में नहीं है। फंडामेंटल ड्यूटी में आपके पास क्या राइट है? एनफोर्सेबल बाय लॉ है। ये लॉ मतलब कि पार्लियामेंट आपका इनकी एनफोर्सिबिलिटी के लिए लॉ बना सकता है कि ऐसा आपको करना चाहिए। आपको अपना प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल एंथम, राइट, प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल योर फ्लैग, इनके लिए फंडामेंटल, और इनके लिए ओवर द टाइम पीरियड्स बने भी हैं नेशनल लॉज। जैसे आपका है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, आपके इन्वायरमेंट से रिलेटेड इसको बनाया गया है। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, राइट, इसको बनाया गया है आपका। तो ये इस तरीके से जो हैं, जो एनफोर्सेबल बाय लॉ ये हो सकती है, पार्लियामेंट इनके लिए लॉ बना सकता है। इवन सुप्रीम कोर्ट हैज सेड दैट इन अ जजमेंट्स कि अगर किसी लॉ को कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ लॉ देखनी है तो फंडामेंटल ड्यूटी वहाँ पे अपना रोल प्ले कर सकती हैं। ओके, और उसके बाद हम देखते हैं ये वर्मा कमेटी भी बहुत इंपॉर्टेंट। जब फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात होती है तो दो कमिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं, दैट इज़ वन इज़ स्वरण सिंह कमेटी एंड सेकेंड इज़ वर्मा कमेटी ऑफ 1999। आइडेंटिफाइड द एग्जिस्टेंस ऑफ लीगल प्रोविजन, इन्होंने बस ये बोला कि यहाँ इंडिया में कुछ प्रोविजंस हैं जो लीगली फंडामेंटल ड्यूटीज़ को फॉलो अप करवाते हैं। ये ओवरऑल फंडामेंटल ड्यूटी का कॉन्सेप्ट है।